welcome to our channel. In this video, we are going to study about agronomy. Agronomy, as we know, is the very basic part of agriculture and it forms the most important aspect of agriculture. तो सबसे पहले हम एटिमोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। एग्रोनॉमी का जो वर्ड है वो कहाँ से आता है और इसका मतलब क्या होता है। एग्रोनॉमी जो वर्ड है दैट इज derived from a word agros and nomos. Agros meaning a field or a piece of land, and nomos means to manage. So, any management practice that is done on a piece of land is referred to as agronomy. And अगर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात करें तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में बेसिक प्रिंसिपल जो अप्लाई होते हैं दैट आर एग्रोमेट्रोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं, सॉइल टिलेज, सॉइल वाटर कंजर्वेशन, क्रॉपिंग सिस्टम, वीड मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, irrigation management, farm management, ये सारी जो practices हैं that are applied in the to the field to get maximum yield and maximum returns. Definition की बात करें तो it is a branch of science, agricultural science, I would say, that deals with the crop production for maximum economic returns without deteriorating the soil fertility. Also, we have to keep in consideration that we don't have to deteriorate the soil fertility. So as the possibility for future generation to produce their their own crops must be maintained and protected. A field which is managed for economical point of view and also keeping the soil alive for the next generation, that is our sustainable development. And next we are going to see the very important and very basic part of agronomy, that is tillage. तो जब भी हम एग्रोनॉमी और मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो की जाती है मैनेजमेंट में दैट इज ऑर्टिलेज। जो सॉइल है, सॉइल सरफेस है, उसका मैनेजमेंट जो है वो सबसे प्राइमरी एम होता है हमारा किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन से पहले। जब भी कोई भी प्लांट या पौधा उगाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम जो करते हैं वो है हमारा सॉइल। सॉइल को ठीक करते हैं, सॉइल को मैनेज करते हैं फॉर प्रॉपर germination and all. So tillage क्या है? Tillage is the action of mechanical manipulation of soil with tools and implements to obtain conditions ideal for seed germination, establishment and growth. Seed germination और growth के लिए जो हम optimum condition, soil condition बनाते हैं, that is referred to as tillage. It is a action and tilth. टिल्थ हम समझेंगे क्या है। टिल्थ क्या है? जब हम जो भी सारी मैकेनिकल प्रैक्टिसेस कर लेते हैं तो जो हमें टेक्सचर ऑब्टेन होता है, जो रिजल्ट, the result that is obtained after tillage is referred to as tilth. Tillage is a verb and tilth is the result. Father of tillage, Jethro Tull hai. He was born in England. He lived from 1674 to 1741. He also introduced horse hoeing husbandry, and in his book he says tillage is like weeding and feeding combined. Fine soil particles feed plants. विजुअल डिफरेंस अगर हम इमेजिन करने की बात करें तो पुअर टिल्थ वो होती है जिसमें क्लॉट्स बड़े बड़े होते हैं, क्रस्ट होता है, कॉम्पैक्ट होती है जो सॉइल, पुअर एरेशन होता है, वाटर लॉगिंग ज़्यादा होती है, दैट इज रिफर्ड जनरली रिफर्ड टू एज पुअर टिल्थ कंडीशन। गुड टिल्थ की बात करें तो इमेजिन अ बिस्किट। ओके, बिस्किट को जब आप फोड़ने की कोशिश करेंगे तो कैसा वो भुरभुरा सा हो जाता है। ओके, तो दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ गुड टिल्थ। इट इज क्रम्बी, पोरस, granular like biscuit, easy root initiation होता है उसमें। Next, we are going to understand what are the different types of tillage. There is two basic tillage operation. First one is primary tillage, which is also referred to as preparatory tillage, which includes breaking of the large clods. जो भी बड़े बड़े क्लॉट्स होते हैं, जो सबसे इनिशियल जो टिलेज ऑपरेशन होता है दैट इज रिफर्ड टू एज प्राइमरी टिलेज। सबसे पहले हम हेवी प्लोइंग मशीनरी से सॉइल को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं इसमें। एंड इसमें जो डेप्थ होती है अराउंड 15 to 30 सेंटीमीटर होती है, सॉइल को पूरा इन्वर्ट कर दिया जाता है। इट ब्रेक्स ओपन हार्ड पैन, इट बरीज द वीड्स एंड द रेसिड्यूज। इसकी टाइमिंग जनरली आफ्टर कोई भी प्लांट जो है वो अगर क्रॉप कोई स्टैंडिंग क्रॉप है उसके जैसे ही हार्वेस्ट होता है उसके बाद तुरंत ही प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन कर दिया जाता है। सॉइल कंडीशन, द सॉइल शुड नॉट बी वेरी वेट, क्योंकि अगर बहुत वेट होगा तो it would not be easy for the primary tillage and it won't even work. Power, it requires heavy power, high draft, and needs heavy machineries or high draft bullocks.
नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज के बाद जब सॉइल हमारी ब्रेक ओपन हो जाती है तो उसके बाद जो भी रिफाइनिंग, लेवलिंग और सीड बेड प्रिपरेशन होता है, दैट इज रिफर्ड टू एज सेकेंडरी टिलेज। इट इज जनरली लाइट ऑपरेशंस जनरली आफ्टर द प्राइमरी टू मेक फाइन फॉर्म सीड बेड। मशीन्स की बात करें तो कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, ब्लेड हैरो, हो, प्लैंकर एंड रोलर का इसमें इस्तेमाल होता है। जो हल्की मशीनरी होती है उस उन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। यही प्राइमरी जो हमारा प्रिपरेटरी टिल्स था उसमें हैवी मशीनरी जैसे मोल्ड बोर्ड प्लो, देसी प्लो, डिस्क प्लो, रिच प्लो, इन मशीन्स का इस्तेमाल होता था। सेकेंडरी टिलेज की बात करें तो वी हैव अ डेप्थ ऑफ अराउंड 5 to 10 सेंटीमीटर। इट इज जनरली शैलो, नॉट वेरी डीप। ऑब्जेक्टिव्स: कोल्ड क्लॉड क्रशिंग द क्लॉड्स, अगर कोई रिमेनिंग क्लॉड है दैट आर क्रश्ड अगेन। लेवलिंग होती है अगर कहीं फील्ड में गड्ढे हैं या फिर कहीं आपको ऐसा लगता है कि पानी रुकने की संभावना है तो दैट इज ऑल्सो डन इन दिस। वीड रिमूवल इज इम्पोर्टेंट। इम्प्रूव सीड सॉइल कॉन्टैक्ट, मॉइस्चर कंजर्वेशन, क्योंकि लेवलिंग हो जाती है और सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव हो जाता है तो सीड सॉइल का कांटेक्ट का जो पॉसिबिलिटी है दैट इंक्रीजेस। 2-3 ऑपरेशंस आर मोर देन इनफ। 2-3 बार करने से ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अवॉइड, वी जनरली अवॉइड ओवर टिलेज। ज़्यादा टिलेज कर देने से जो सॉइल की कंडीशन होती है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो सॉरी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो भी, उनका भी नुकसान होता है। इंडिया वी जनरली प्लैंक आफ्टर ईच ऑपरेशन। प्लैंकिंग रिफर्स टू जो हम सीड बेड को इवन करते हैं, जो जनरली एक वुड का टुकड़ा होता है जो मशीन, प्लाउइंग मशीन के पीछे उसको सरफेस को बराबर करने के लिए दौड़ाया जाता है, दैट इज रिफर्ड टू एज प्लैंकिंग। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा टिलेज का? इट इज जनरली टू मेंटेन और इंक्रीज द एरेशन एंड पोरोसिटी ऑफ द सॉइल। इट ब्रेक्स कॉम्पैक्ट सॉइल, इंक्रीजेस पोर स्पेस फॉर एयर। जो एरेशन है और पोरोसिटी है उसको बढ़ाने के लिए यूज होता है। इम्प्रूव सीड सॉइल कॉन्टैक्ट, fine soil around the seed for moisture uptake. It prevents crust formation, or even if the crust is already there, it breaks it. It avoids hard crust that blocks seedling emergence. क्योंकि अगर बहुत hard रहेगी तो बहुत soft होते हैं सीड के जो seedlings होते हैं, that would not be able to penetrate into the soil. Next, also we try to decrease the bulk density of the soil. So loose soil is very easy for root penetration and growth. Weed free light, pest and disease free, mix manures, and remove hard pan. These are all the objectives of tillage. आइडल सीड बेड के कंसेप्ट की बात करें तो जो सबसे ऊपर वाला जो सरफेस होता है 2 to 3 सेंटीमीटर, दैट शुड बी वेरी फाइन एंड लूज। नेक्स्ट, द सरफेस जस्ट बिलो इट should be firm and moist for seed zone, and below it should be loose root growth, and that would support root growth and drainage. Conventional tillage is one of the oldest method of tillage, but it is a bit costly. पुराना तरीका है, आज भी हमारे यहाँ गाँव में यूज़ किया जाता है और थोड़ा सा इसमें महंगा है। It is a kind of intensive tillage in which primary and repeated secondary operations are done to make fine seed bed. ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है बट आज की डेट में चूँकि फ्यूल्स और सॉइल काफ़ी यूज़ होता है, या फ्यूल की बात करें तो काफ़ी यूज़ होता है, सॉइल काफ़ी लूज होती है इसमें, तो दैट इज़ कंसिडर्ड अ बिट not that advantages. So we are going after different other tillage practices. We will study them in detail in the next coming slides. बट अभी के लिए इसमें क्या है, जो ट्रेंड्स हैं कन्वेंशनल टिलेज में, पहला, डेप्थ जो है इसकी धीरे धीरे कम की जा रही है। 30 सेंटीमीटर तो 15 सेंटीमीटर कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा डीप प्लॉइंग नहीं की जाती है। इट ऑल्सो सेव्स पावर एंड कॉस्टिंग। जो ऑपरेशन है, नंबर ऑफ ऑपरेशन पहले 6-6 बार किया जाता था, बट अभी इसको 2-3 तक ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। डायरेक्ट ड्रिलिंग भी की जाती है विदाउट सीड बेड फॉर्मेशन, हम सीधे ड्रिल कर देते हैं सॉइल को। कंबाइंड ऑपरेशन, रोटावेटर और टिलेज, कंबाइंड ऑपरेशन टिलेज
रोटावेटर के साथ करते हैं आई थिंक। टिलेज, लेवलिंग और मिक्सिंग ये सारी चीज़ें एक साथ ही कर दी जाती है सो दैट मल्टीपल ऑपरेशंस कैन बी अवॉइडेड। हर्बिसाइड और टिलेज एक साथ ही कर दिया जाता है, क्योंकि पहले क्या होता था, एक बार हम हर्बिसाइड के लिए टिलेज करते थे, दूसरी बार फिर टिलेज के लिए टिलेज करते थे, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, ऑल्सो कॉस्ट। अभी क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है कन्वेंशनल टिलेज के? कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है, डीजल, लेबर, अराउंड 40% ऑफ द कल्टीवेशन कॉस्ट सिर्फ टिलेज लेके जाता है। सॉइल इरोशन काफ़ी होता है, सॉइल जो होती है एक्सपोज हो जाती है, और इस वजह से क्या है, बारिश और अ, हवा जो है वो काफ़ी, जो टॉप मोस्ट लेयर है उसका काफ़ी नुकसान होता है। लॉस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर ड्यू टू ऑक्सीडेशन डिस्ट्रॉयज अर्थ वॉर्म्स, क्योंकि सॉइल ओपन रहती है तो ऑक्सीडेशन काफ़ी होता है, एयर के कांटेक्ट में होती है, और इस वजह से ऑर्गेनिक मैटर का काफ़ी लॉस होता है। अर्थवॉर्म्स और बाकी बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं उनका काफ़ी नुकसान होता है, मशीनरी उनके जो एक तरीके से घर को उखाड़ फेंकती है, तो इस वजह से काफ़ी हमारा इन्वायरमेंटल और सॉइल लॉस होता है। इट ऑल्सो फॉर्म्स हार्ड पैन इफ डन एट द सेम डेप्थ एवरीवेयर। अभी क्या है, हैवी हैवी मशीनरीज चल रही होती हैं, और अगर आप सेम डेप्थ जैसे 15-15 सेंटीमीटर्स तक ही अगर आप टिलेज कर रहे हैं और मशीनरीज चल रही हैं हर साल टाइम आफ्टर टाइम, तो क्या होता है कि उनके जस्ट नीचे एक हार्ड पैन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इन मशीनरीज का वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। कॉस्टिंग की बात करें तो डीजल जो है अराउंड 65% ऑफ द टिलेज ऑफ प्रैक्टिस ले लेता है, लेबर 20%, वियर और टीयर जो है वो 15%, ये अराउंड कॉस्टिंग होती है। अगर आप एक एक्स्ट्रा प्लोइंग करते हैं एक हेक्टेयर में, तो अराउंड 25 से 30 लीटर डीजल का खपत होता है। अगर आज की रेट की बात करें तो 90-100 के बीच में आता है डीजल, एंड इट वुड टेक अराउंड 2500 रुपीज एक्स्ट्रा टू conduct one more tillage operation. Next, we will try to understand a modern concept which is referred to as minimum tillage. कम करना है, ज़्यादा उगाना है, that is do less and grow more. Definition refers, its definition says that the minimum soil manipulation necessary to crop production. The definition of minimum tillage says that it is minimum soil manipulation necessary for crop production. The definition of minimum tillage says that it is the minimum soil manipulation necessary for crop production. Only tillage needed for placing the seed, meeting germination and growth. There are two ways in which the minimum tillage operations are done. It omits operations that don't give very much benefit, and also it combines operations uh, like weeding और tillage एक साथ कर लिया, herbicide और tillage एक साथ कर लिया. So these things minimize the tillage operations. Advantages क्या है? It improves soil structure and organic matter. The residue on surface also uh, increases the organic content of the soil. High infiltration, less runoff, better root growth, less crust, saves time, saves fuel and cost अगर टाइमली सोइंग की जाए तो. डिसएडवांटेजेस, इसमें चूंकि बार बार हम टिलेज नहीं कर रहे होते तो वीड इन्फेस्टेशन का चांसेस ज़्यादा होते हैं. नीड्स हाई पावर सीडर, डिफिकल्ट इन हार्ड वीडी सॉइल, बहुत अगर टफ सॉइल रहेगा तो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है करना. नाइट्रोजन इमोबिलाइजेशन इनिशियली, नीड्स टेक्निकल नॉलेज. बहुत अगर आप सीधी सी बिना किसी नॉलेज के मिनिमम टिलेज ऑपरेशन अप्लाई करने लगेंगे तो हो सकता है आपका नुकसान भी हो सके, क्योंकि इट रिक्वायर्स अ बिट ऑफ एक्सपर्टाइज. Now there are some simple methods for minimum tillage. Row zone tillage, till only row zone around 15 to 20 सेंटीमीटर की टिलेज की जाती है. इंटर रो जो है उसको कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता, दैट इज लेफ्ट अनटिल. ओके, एंड जो वाइड क्रॉप्स होते हैं उनके लिए ये एडवांटेजेस होता है, उसमें हमें हमारा टाइम और एनर्जी और मनी तीनों चीज़ बचाता है. प्लो प्लांट सोविंग और प्लोइंग एक साथ कर दी जाती है, एंड इट सेव्स अराउंड 2-3 days tractor with seed drill behind. Wheel track planting, इसमें क्या है, प्लॉ करते हैं, देन उसके जो ट्रैक्टर के व्हील्स होते हैं
उसके पीछे पीछे ही सोइंग हो जाती है और इसमें सेकेंडरी टिलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। जीरो टिलेज क्या होता है? जीरो टिलेज में टिलेज करते ही नहीं है। इट नो टिलेज एट ऑल, क्रॉप्स सोन इन नैरो स्लॉट 2 to 3 centimeter ओपन बाय जीरो टिल ड्रिल, वीड कंट्रोल बाय हर्बिसाइड नॉट प्लो। इसमें टिलेज करते ही नहीं है, बस अब एक छोटा सा गड्ढा खोदते हैं और होल इज ओपन एंड द सीड इज प्लांटेड, और बस उतना ही करते हैं। इसमें जो वीड कंट्रोल होता है हर्बिसाइड के थ्रू किया जाता है, प्लविंग के थ्रू नहीं करने की कोशिश करते हैं। हर्बिसाइड स्प्रे करते हैं। कब यूज़ करते हैं इसको? राइस वीट सिस्टम में इसको यूज़ किया जाता है। टाइमली वीट सोइंग की जाती है। हेवी सॉइल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है जहाँ प्लोइंग बहुत मुश्किल होती है और क्रॉप्स के बीच में टाइम कम होता है। लेबर शॉर्टेज, अगर लेबर की कमी है तो वहाँ भी यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। मॉइस्चर कंजर्वेशन इसमें ज़रूरी होता है, मतलब जहाँ अगर हमें मॉइस्चर कंजर्व करना होता है सॉइल का, हम वहाँ भी इसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि वंस द सॉइल इज ब्रेक ओपन देन द लॉट ऑफ मॉइस्चर इज लॉस्ट फ्रॉम द सॉइल। प्रॉब्लम्स इसमें क्या आती हैं? जो पेरिनियल वीड्स हैं, क्योंकि टिलेज नहीं हो रहा है इसमें, तो जो पेरिनियल वीड्स का इंस्टेंस होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसमें हर्बिसाइड डोज जो है सोच समझ के देना पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम हुआ तो दैट वुड क्रिएट अ हेवी लॉस। सीड फर्टिलाइजर प्लेसमेंट इशू, ये कहाँ हमें सीड रखना है, कहाँ फर्टिलाइज, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि एक छोटा सा होल है उसमें फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कैसा है, एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम एक्सपर्टाइज, आई वुड से। नीड्स जीरो टिल ड्रिल हैप्पी सीडर, इसकी अपनी एक मशीनरी होती है। अच्छा, इसमें जनरली हम पैराकॉट का इस्तेमाल करते हैं, पैराकॉट डाइकॉट। दीज आर नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट बर्न डाउन वीड्स बिफोर सोइंग। इसको 0.5 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से 2 to 3 days बिफोर सोइंग इस्तेमाल किया जाता है। एक और टर्म है कंजर्वेशनल टिलेज, दैट इज और स्टबल मल्च। एनी टिलेज दैट लीव्स मोर देन 30% crop residue on surface as mulch is called stubble mulch farming. Purpose: reduce erosion, conserve moisture, improve organic matter. कंजर्वेशन टिलेज और स्टबल मल्च फार्मिंग में ये चीज़ें होती हैं। 30% से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो हम सरफेस पे छोड़ देते हैं। एवोपरेशन को रिड्यूस करता है, मल्चिंग इफेक्ट देता है, रेसिड्यूज को प्रोटेक्ट कर देता है और अर्थवर्म्स को एक तरीके से कंजर्व करके रखता है। इंडिया का टारगेट है कंजर्वेशनल टिलेज करने का इन 10 मिलियन हेक्टेयर बाई 2030। The basic difference between zero and minimum tillage: in zero tillage no tillage operation is done. Minimum tillage में 1 to 2 tillages का. Some important and common tillage implements. Basic plow we all know, जो हमारे यहाँ गांव देहात में यूज़ किया जाता है, अंति प्लो भी जिसको कहा जाता है। इसमें हल्की प्लोइंग होती है, ऊपर ऊपर ही होता है। मोल्ड बोल प्लो जो होता है इसमें काफ़ी डीप प्लोइंग होती है और इट इन्वर्ट्स एंड, मतलब क्योंकि देसी वाला तो अंडर ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा ना। then comes disc flow which is also deep. मम्मी नेक्स्ट हमारा डिस्क फ्लो है, रिज फ्लो, चिसल फ्लो, सब सॉइलर, यू कैन ऑल्सो स्टडी। ये सारे सब कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ प्लोइंग मशीनरी हैं। इसमें डीप और शैलो आप हम समझते हैं, अगर 10 to 15 सेंटीमीटर उसका टिलिंग डेप्थ है देन दे आर कंसिडर्ड इन शैलो, एंड इफ दे आर मोर देन 15 and less than 30 then the plowing machinery is referred in the deep plowing machinery category. If you want you can also take a screenshot and take it and see it later. इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें नहीं है, आप चाहें तो इंटरनेट पे इनकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं। रोलर, पटलर, बंड फॉर्मर, हो, स्प्रिंग, द टाइन हैरो, these are the machines very commonly known. these are all, these are the machines I think everyone already knows, so we don't need to get in deep into these topics. नेक्स्ट हमारा है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। हर क्रॉप की है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसमें इस स्लाइड में हम, नेक्स्ट हमारा आता है टिलेज के बाद इरिगेशन एंड
In irrigation, we will like to understand some of the major crops water requirement. इसमें अगर wheat की बात करें तो around in millimeters, this data is in millimeter में requirement देख रहे हैं। इसमें wheat जो है उसका requirement जो होता है 450 to 650 मिलीमीटर होता है, and paddy 900 to 2500 mm, maize 500 to 800 mm, sorghum 450 to 650, sugarcane 1500 to 2500, tobacco 400 to 600, groundnut 500 to 700, cotton 700 to 1300. लुक, ये जो जितने भी स्लाइड्स हैं ना, हम एक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आई डोंट थिंक मैं आपको दे पाऊँगा, और मुझे लगता भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी है। जो बेसिक्स हैं यू नीड टू अंडरस्टैंड दोज, और बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाके हम अपने टाइम को बचाते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं और कंपटीशन में बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल में आपसे पूछता भी नहीं है। बेसिक्स आप समझिए और उसके बाद थोड़ा सा इसको 2-3 बार देख के याद करने की कोशिश करिए। सो दीज वीडियोज़ आर मेड फॉर दैट पर्पज़, जिससे आपको बेसिक समझ में आए, विजुअलाइजेशन के थ्रू आपको चीज़ें याद हो जाए एंड आपका काम हो जाए। सो आवर ऑब्जेक्टिव शुड बी फुलफिल्ड। आवर मेजर ऑब्जेक्टिव, तो अपना मेजर जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो आपको कंपटीशन की तैयारी कराने का है, ना कि आपको कॉलेज और एकेडमिक्स में टॉप कराने का है। सो अरे ये देखो, आता आपकी बोली